এবারে বন্যা পরিস্থিতি রুখতে দামোদর নদে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করতে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় এই কমিটি সমন্বয় রক্ষা করে চলবে রাজ্য সরকারের সঙ্গেও। দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শন করে আজ এই তথ্যই জানালেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী। কেন্দ্রের ডাকে এবারে রাজ্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়ায় কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। বন্যার ভ্রুকুটি রুখতে এবারে দামোদর নদে ড্রেজিং শুরু করা হবে। গঠিত হবে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি, যারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করেই চলবে। আজ দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে আজ দুর্গাপুরে দামোদর নদ পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কথা বলেন ডিভিসি আধিকারিকদের সঙ্গেও। প্রতি বছরই বর্ষা বা অতিবৃষ্টিতে ডিভিসি জল ছাড়ার জন্য বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, যাকে আবার কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতও বাড়ে। দামোদর নদে ড্রেজিং না হওয়াটা বন্যার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবার সেই ড্রেজিংয়ের কাজে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নেবে বলেই জানান কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী। যে কমিটিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি সমন্বয় রক্ষা করে চলবে বলেই জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দামোদর নদের নাব্যতা বাড়ানোর দাবি ছিল দীর্ঘদিনে। রাজ্য না কেন্দ্র ড্রেজিং কে করবে তা নিয়েই ছিল চাপান উত্তর। এবার কেন্দ্রীয় জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শন করে বলেন, রাজনীতি নয়, এবার মানুষের স্বার্থেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করুক রাজ্য সরকার। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিধায়ক লক্ষণচন্দ্র ঘড়ুই বলেন, রাজ্য সরকার দুর্গাপুর ব্যারেজ দামোদর নদ নিয়ে উদাসীন, আর যার জন্য প্রতি বর্ষাতেই এবং অতিবৃষ্টির ফলে মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। এখন দেখার বিষয়, প্রত্যেক বছর দামোদরে জল ছাড়ার জেরে দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, হুগলি, হাওড়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় যে ধরনের বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় তা রুখতে কতটা সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কতটা সাড়া দেয় কেন্দ্রের ডাকে। इसीलिए फ्लड हो रहा है और ड्रेजिंग 50 साल से ड्रेजिंग नहीं किया डीवीसी किसी भी रिजर्वर में, क्या कहना है? देखिए, हम आज रोजगार मेला के अवसर पर एनआईटी दुर्गापुर के सभागार में आए थे और वहाँ हमारे सम्मानित विधायक लखन घोड़िया जी के आग्रह पर यहाँ देखने आए हैं। इन्होंने आग्रह किया था कि यहाँ जो डीवीसी का जो बैरेज है इसकी स्थिति अच्छी नहीं है और सिल्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि होल्डिंग कैपेसिटी इसका घट गया है। तो इसी के कारण हम यहाँ आए हैं देखने के लिए और यहाँ के पदाधिकारी लोगों से भी मिलेंगे और जो इस बैराज के अच्छाई के लिए जो भी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग विचार विमर्श करेंगे। डिसिल्टेशन का कोई आप लोग कोशिश करेंगे कि होगा? देखिए, जो एक्सपर्ट हम लोग बैठेंगे दिल्ली में जा करके फिर हम बात करते हैं। इन्होंने आग्रह किया, इन्होंने रिटेन भी दिया है कि हम इसके लिए डिसिल्टिंग के लिए ताकि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। यहाँ पर डेप्थ 5 से 7 फीट हुआ करता था, आज 3 से 4 फीट मात्र डेप्थ बच गया है। तो निश्चित रूप से जब होल्डिंग कैपेसिटी घटेगा तो कम पानी में भी बाढ़ की स्थिति लोड बढ़ेगा बैराज पर। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्सपर्ट से राय लेकर। मिनिस्टर कहते हैं कि डीवीसी का बैरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी डीवीसी का है, वो बार बार लोग को निवेदन करता है करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। ये देखिए, उनका तो आदत है बिना मतलब का हर चीज़ में राजनीति करने का। देश में ये सब चीज़ें जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए हर जगह राजनीति अच्छी नहीं लगती है और इसके लिए जो बेस्ट डिसीजन लेना होगा, जो इसके लिए जो बेस्ट मेजर्स होगा हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे इस मुद्दे पे? निश्चित रूप से बात करेंगे और जो एक्सपर्ट टीम है उसको भी हम भेजेंगे और आकर के देख करके जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी इसके बेहतरी के लिए करना होगा वो करेंगे। पहले भी एक एमपी टीम आया था, ये इसी आपकी तरह ऐसा विजिट किया था स्टैंडिंग कमेटी का, तो वो भी बोला था कि ये डिसिल्टेशन होगा, बहुत बड़ा था, तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, ये इफेक्टेड हो रहा है हर साल मानसून में। तो क्या आप लोग का ये
देखिए हमारा Importance प्रयास देकर ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंस देकर के ही इसलिए तो आए हैं। अदरवाइज ये एक्चुअली अनऑफिशियल मेरा विजिट है, ये ऑफिशियल विजिट है नहीं। इनके आग्रह पर लखन जो भाई साहब हैं, इनके आग्रह पर मैं आया हूँ यहाँ देखने के लिए, और यहाँ करके मुझे देख करके जो भी एक्सपर्ट टीम भेजेंगे और जो वो डिसीजन देंगे, वो जो सलाह देंगे उसको हम आप संसद में ये मुद्दा उठाएंगे? ये अब कमेटी में बात करेंगे, हमारे जो मंत्रालय के एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे उनको। सर डीवीसी का माइथन और पांचेत जो डैम है वो डिसलिंटेशन करने का कोई इरादा है आप लोगों का? डिसिल्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा है देश के स्तर पर, ये कोई एक जगह का मामला नहीं है, और इस पर हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं कि क्या कैसे किया जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट का ओपिनियन अलग अलग है, तो उसमें देखते हैं जो बेस्ट डिसीजन होगा, जो बेस्ट सुझाव आएगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट दुर्गापुर करेंगे। बैरेज जो रिलेटेड है माइथन और पांचेत जो रिजर्वर है उसके साथ रिलेटेड है, वो वहाँ हाँ। वाटर डिस्चार्ज होता है तो वही वाटर यहाँ आते हैं, और यहाँ से डिस्चार्ज होने से 3-4 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड होता है। वहाँ का डिसलिंटेशन ज़्यादा जरूरी है। हम जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा, जो बेस्ट ओपिनियन होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर। What are the labels? Most of the times it is said that state government complains that DVC doesn't inform in time, and last time it was also established that the DVC only had informed over WhatsApp message at 1 a.m. after the midnight hours. Do you think that there is some lack of coordination between the DVC center as well as the state on this issue? नो, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए वो सब जगह अलार्मिंग सिस्टम लगाया गया है, देश में इतना डाटा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि सारे जगह अलार्मिंग सिस्टम लगे हुए हैं। जब भी कुछ पूर्वानुमान 7 दिन 10 दिन पहले भी दिया जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है, वो कैचमेंट एरिया में जो बारिश की स्थिति है, पानी का जो कंडीशन है, उसके आधार पर दिया जाता है। कुछ 24 आवर बिफोर भी दिया जाता है। तो ये कहीं से भी ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात नहीं है। वैसे लास्ट एक बात है कि चीफ मिनिस्टर सडनली डिक्लेयर दैट दे विल क्विट फ्रॉम डीवीसी। वो लोग डीवीसी छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है डीवीसी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी जरूर है, लेकिन ये भागीदारी है सेंटर और स्टेट दोनों का। तो इसमें से अगर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, चीफ मिनिस्टर एक बार नहीं कई दफा, तो कि हम लोग डीवीसी के साथ नहीं, हम लोग छोड़ रहे हैं। वो दो अधिकारी उनका त्याग पत्र भी दे दिया था शायद, वो तो तब तक का बात है। लेकिन अब तक स्थिति क्या है? वाकई में क्या स्टेट गवर्नमेंट हट चुका है, ये हम मान के चले? ये मेरा अनऑफिशियल विजिट है। हम यहाँ पर रोजगार मेला में आए थे जी सर। NIT दुर्गापुर के सभागार में कार्यक्रम था, और यहाँ के सम्मानित विधायक जी लखन घुरई साहब के आग्रह पर हम यहाँ देखने आए हैं। इसके बाद हम एक्सपर्ट की टीम को भेजेंगे, देखेंगे क्या मामला। स्टेट गवर्नमेंट डीवीसी में है अभी कि नहीं है, हम ये मुझे जानकारी लेना पड़ेगा। जानकारी। सर एक लास्ट मेरी तरफ से सवाल है, डीवीसी संयंत्र जो है वो सर उनका जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था उसमें इसको स्थापित किया गया था, तब उनका अनगिनत लक्ष्य था काम करने का। उसमें आपको पता है कि फ्लड कंट्रोल सबसे ज़्यादा अहमियत था, लेकिन नीचे की तरफ था कि पावर जनरेशन। अभी हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि डीवीसी का हेड्स जो होते हैं, डीवीसी को जो चेयरमैन सहित और लोग जो हैं, ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं पावर जनरेशन के ऊपर, और जो लोग को वहाँ बैठाया जाता है वो पावर इंजीनियर्स हैं। पावर डिपार्टमेंट का ही थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो क्या ये मान के चले हम लोग की ये जो फ्लड कंट्रोल या फिर पानी की कमी होता है टाइम टू टाइम, इसके ऊपर केंद्र सरकार या डीवीसी दोनों ध्यान नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो समग्र जो पूरा मैनेजमेंट की बात हम लोग करते हैं, सिर्फ फ्लड कंट्रोल की नहीं है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं वाटर मैनेजमेंट की ओर। सिर्फ पहले क्या होता था कि हम लोग सिर्फ बाढ़ से कैसे बचा जाए उस पर काम करते थे। अब बाढ़ हमारे पास अगर पानी है तो उस पानी का मैनेजमेंट कैसे हो ताकि ना बाढ़ आए, उसका सदुपयोग कर सकें, लोगों को पीने में उपलब्ध करा सकें, उससे इरिगेशन हो सके,
तो हम लोग उस पर एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं। नहीं सर, लेकिन हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स कोई हेड नहीं होते। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, 2 दशक से कम कि जो लोग वहाँ हेड करते हैं वो या इलेक्ट्रिकल फील्ड से, पावर इंजीनियरिंग की फील्ड से आते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? मैं जाकर जानकारी लेकर के आपको बताता हूँ। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, जो कमिटमेंट पहले हुआ होगा, जो MOU साइन हुआ होगा, उसी आधार पर काम हो रहा होगा, और आगे जो भी होगा डिटेल जानकारी मैं लेकर आपको बताऊंगा। थैंक यू सर। মানে দীর্ঘদিনের সমস্যা আপনি এলাকার বিধায়ক, তো কতটা কাজ এগোবে বলে মনে হয় বা কোন জায়গায় দাবি তুলবেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতা বা কতটা পাওয়া যাবে? আমাদের আজকে যে রোজগার মেলা সারা ভারতবর্ষে 51,000 আজ যুবক যুবতীরা আজকে কর্মসংস্থানের হাতে তুলে দেওয়া হলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরে প্রায় 184 জনকে আজকে আমরা তুলে দিয়েছি। মন্ত্রী, আমাদের জলসম্পদ মন্ত্রী রাজভূষণ চৌধুরী রিকোয়েস্ট করেছিলাম, চিঠি করেছিলাম যে আমাদের ব্যারেজ 57 সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে ড্রেজিং হয়নি বা ভেঙে পড়ছে। এই সরকার উদাসীন, সরকার খালি কেন্দ্রে দোষ দেয়। তা আপনি আসুন, ভিজিট করুন এবং এর সমস্যার সমাধান করুন। এর ফলে 4টি জেলা, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে। দুর্গাপুর অনেক সময়তে ইন্ডাস্ট্রি আছে, মানুষ জল পায় না, কৃষিকাজে জল পায় না, সামান্য বৃষ্টি হলে বন্যা হয়ে যায়। তাই এই ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন। মন্ত্রী রিকোয়েস্ট করেছিলাম, মন্ত্রী আমার কথা সাড়া দিয়ে পরে তিনি এসছেন, পরিদর্শন করেছেন এবং তিনি বলেছেন এক্সপার্টকে পাঠিয়ে পরে পরিদর্শন করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ মন্ত্রীর কাছে, মানুষের কাছে আহ্বান করব, আগামী দিনে অবশ্যই আশা করব এই সমস্যার সমাধান হবে।